Preparing for CIB exam, then do watch this video till end, because in this particular video we are going to cover the very important topics, and further this video is going to be very important for you for the upcoming exam of CAIB. So whether you are going to prepare in Hindi mixed English language or you are preparing in English language, both the courses are available with the learning sessions over there, which you can basically be enrolling, signing up at our website, that is mentioned on the screen over there and also present in the description box below. Or you can simply scan the QR code over here and further can navigate to the website over there, or you can alternatively download our Android application, which is available in the name of IIBF Learning Center. And if you are iOS user, do download My Institute application and use the organization code GEGKT and start preparing for the same. We are having the full course for CAIB, in which we will be covering all the 5 papers of the CAIB, including the 5 elective subjects over there. And further, those are available in Hindi mixed English language. The electives are available only in bilingual language and not available in English language. But in English language, we are having the full-fledged 4 compulsory subjects, and we are covering the full course videos which are covered in chapter-wise manner. We are having the full course case study videos, and we are having the chapter-wise previous questions, mock test, mega mock test, each and everything is there. And also we are going to provide you with the complimentary access to the ePDF notes, so as that you can escalate your revision throughout the time when you will be preparing for the CIB over there. So do enroll right now and start preparing for the same, and don't forget to watch this video till end. And further, if you like this video, do like this video and share this video among your friends and colleagues who have been preparing for CAIB. It's related to fraud and vigilance in banks over there. तो फ्रॉड पर्टिकुलरली क्या होता है, उसे सेक्शन 17 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881 में उसको डिफाइन किया गया है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो यहाँ पर किसी पार्ट की द्वारा यहाँ पर कमिट की गई है, जो पर्टिकुलरली या फिर उसके एजेंट के द्वारा कमिट की गई है किसी और पार्टी को धोखा देने के लिए, या फिर किसी और पार्टी के एजेंट के साथ चीज कमिट की गई है उसको धोखा देने के लिए, उसके साथ उसी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया था, तो उसको हम फ्रॉड कहते हैं। एंड फर्दर कोई ऐसी सजेशन देना एज अ फैक्ट जो कि सही नहीं है, जिसके वो पर्सन बिलीव कर ले, वो भी एक धोखाधड़ी है। एंड साथ के साथ अगर आप यहां पर किसी चीज के फैक्ट को छुपाते हो, आपकी नॉलेज में है फिर भी आप उसे छुपाते हो, वो भी धोखाधड़ी है। अगर आप यहां पर कोई प्रॉमिस करते हो लेकिन आपकी इंटेंशन उस प्रॉमिस को निभाने की बिल्कुल भी नहीं है, तो भी वो धोखाधड़ी है। एंड फर्दर अगर आप यहां पर पर्टिकुलरली किसी को धोखा देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी कानून को यहां पर साइडलाइन करते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हो, तो वो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ही काउंट होती है, राइट। तो आरबीआई ने यहां पर क्लासिफिकेशन करी है रिलेटेड टू फ्रॉड्स बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी 1860 ओवर देयर। तो इंडियन पिनल कोड की 1860 के तहत यहां पर आरबीआई ने क्लासिफिकेशन करी है फ्रॉड्स की। तो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी, अगर यहां पर दी जाती है किसी तरह का बेनिफिट लेने के लिए, या फिर आप कैश को लेकर के शॉर्टेज कर देते हो, या फिर नेग्लिजेंस आपकी, या फिर आप धोखाधड़ी करते हो, चीटिंग करते हो, फॉर्जरी करते हो, या फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में इरेगुलरिटी है, या फिर किसी और तरह की आपके फ्रॉड जो ऊपर की इन कैटेगरीज में शामिल नहीं है, वो सभी यहां पर अलग से कैटेगरी में डाल दिए गए हैं, लाइक। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू फॉर्जरी। फॉर्जरी को सेक्शन 463 आईपीसी 1860 के अंदर कवर किया गया है। फॉर्जरी का मतलब है कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें यहां पर हम एक झूठा डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट यहां पर फ्रॉड की नीयत से तैयार करते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट जो हो सकता है वो किसी फिक्टिशियस पर्सन के नेम में, या फिर कोई पर्सन डिजीज है ऑलरेडी मर चुका है उसके नेम में ऐसा हो सकता है, या फिर सेवरल पर्सन इकट्ठे मिलकर के ऐसा कोई यहां पर फॉर्ज करने की कोशिश करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, एंड उन डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करने में उनका अलग अलग किरदार है, तो वो सभी यहां पर गिल्टी माने जाएंगे। एक डॉक्यूमेंट यहां पर अगर बनाया गया है किसी फ्रॉडुलेंट या फिर डिसऑनेस्ट एक्ट को छुपाने के लिए, वो भी यहां पर फॉर्जरी माना जाएगा। बट ऐसी जो फॉल्सिफिकेशन होगी वो यहां पर इस केस में फॉर्जरी नहीं मानी जाएगी। अगर ऐसा जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है वो पिछले किसी नेग्लिजेंट एक्ट को छुपाने के पर्पस से यहां पर बनाया गया, तो उसे फॉर्जरी नहीं मानेंगे। अदरवाइज अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पहले की गई थी उसको छुपाने के लिए किया, तो वो फॉर्जरी मानी जाएगी। फर्दर इसके बाद बात आती है कि अगर कोई पर्सन अपने खुद के सिग्नेचर्स को यहां पर पर्टिकुलरली गलत करके शो कर देता कि गलत है, वो भी फॉर्जरी मानी जाएगी, राइट। तो कौन से एरियाज में बैंक्स में यहां पर फ्रॉड हो सकता है आपको बताता हूं। डिपॉजिट के केस में हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आप यहां पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको गलत कर दो, या फिर डॉक्यूमेंट को यहां पर मॉडिफाई कर दो किसी पर्सन को धोखा देने के लिए। या स्टाफ मेंबर कई बार क्या कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल एफडी जो है वो अपने पास रख लें, एंड जो यहां पर फोटोकॉपी है, फेक फोटोकॉपी है एफडी की, वो यहां पर फॉरवर्ड करते हैं कस्टमर को, उसके जरिए भी यहां पर धोखा हो सकता है। एंड एडवांसेस में भी धोखा हो सकता है, यहां पर अनस्क्रैप्टलेस यानी कि जो अनप्रिंसिपल्ड बोरोर्स है उनके
उनके द्वारा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वो काइट फ्लाइंग करते हैं, यानी कि कोई ऐसा बिल जनरेट कर दिया जो एक्चुअल में कोई ट्रेड ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, तो उसके केस में हो सकता है। या फिर हो सकता है कि जिस स्टॉक को उन्होंने आपके पास सिक्योरिटी के रूप में दिया था, वो उस स्टॉक को वो सेल कर दे, बेच दे, इन्फ्लेट कर दे स्टॉक की वैल्यू को, वो भी धोखाधड़ी है। या फिर डाइवर्जन ऑफ फंड्स कर दें। डाइवर्जन ऑफ फंड्स का मतलब होता है पैसा लिया था एक पर्पस के यूज के लिए, लेकिन उसको उस पर्पस के लिए यूज नहीं है, कहीं और यूज कर लिया, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर फ्रॉड माना जाएगा। या फिर डॉक्यूमेंट्स की फाल्सिफिकेशन होगी, जीएसटी रिटर्न शो कर दी 60 लाख की, लेकिन जीएसटी रिटर्न एक्चुअल में थी वो 10 लाख की, तो वो भी फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया। या फिर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज कर दिया, जैसे एयरवे बिल, बिल ऑफ लेडिंग या नेगोशिएबल जो भी बिल होते हैं उनको आपने फॉर्ज कर दिया, वो भी आपके पास क्या हो गया, पर्टिकुलरली फ्रॉड हो गया। इसी तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है, आप शो कर रहे हो कि आप राम कुमार हो जबकि आप तो श्याम कुमार हो, तो वो भी पर्टिकुलरली क्या होता है, वो भी यहाँ पर फ्रॉड हो जाएगा। फॉर द ट्रांजेक्शन एरियाज के हिसाब से अगर देखें तो आजकल क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन है, एम्प्लॉय ने क्या किया, किसी पर्सन को बुलाया एंड फर्दर उसका नया अकाउंट ओपन हुआ था, काफी इलिटरेट पर्सन था, ओल्ड पर्सन था वो, तो उसके केस में उसने मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में मैप कर लिया एंड फर्दर यहां से ट्रांजेक्शन करता गया, हो गया फ्रॉड। एंड ये भी हो सकता है कि जो फेक यूजर्स है वो क्रिएट कर लिए या नॉन एग्जिस्टेंट यूजर क्रिएट कर लिए यहां पर सर्विस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आउटसोर्सिंग के कारण से ये चीज हो सकती है। या सिम क्लोनिंग कर ली, क्योंकि सभी ओटीपी सिम के ऊपर आएंगे, सिम क्लोनिंग कर ली एंड वहां से ओटीपी आए एंड वहां से उसने ट्रांजेक्शन कर ली। या फिर अनऑथराइज्ड डिडक्शन हो सकती है वॉलेट से कस्टमर के, खास करके जब इनफ्रीक्वेंट कस्टमर अकाउंट यहां पर यूज करता है, उसके केस में ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। या फिर हो सकता है कि ड्यू डिलिजेंस जो थी मर्चेंट को लेकर के वो आपने पूरी नहीं की, अब मर्चेंट जो है वो फिक्टिशियस गुड्स को सेल करते हुए कस्टमर्स को चार्ज करता जा रहा है, ठीक है, वो चीज भी हो सकती है। या फिर डेबिट कार्ड स्कीमिंग हो सकती है। डेबिट कार्ड स्कीमिंग के केस में क्या होता है, मशीन में ना पर्टिकुलरली डेबिट कार्ड इंसर्ट करते हैं एंड फर्दर डेबिट कार्ड क्लोन कर लिया, अब उसका इस्तेमाल कहीं और कर सकते हैं। एटीएम फ्रॉड हो सकते हैं, एटीएम फ्रॉड के इतने केसेस हैं, वो सभी भी ट्रांजेक्शन एरिया में शामिल होते हैं। ट्रायंगुलेशन या फिर साइट क्लोनिंग हो सकता है, यानी कि कस्टमर जो है वो अपनी कार्ड की डिटेल्स जो है सारी की सारी डालता है वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वो फ्रॉडलेंट वेबसाइट होती है, यानी कि वेबसाइट ही फ्रॉडलेंट है, कार्ड की डिटेल्स डाल दी एंड बाद में उन डिटेल्स का मिसयूज हो गया, जिसको हम फिशिंग के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। अब बैंकिंग एंड साइबर फ्रॉड कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में यहां पर हम डिटेल में फटाफट से यहां पर पढ़ लेते हैं। बैंकिंग एंड साइबर फ्रॉड में सबसे पहले बात आती है डीडीओएस के बारे में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के बारे में। तो एक पर्टिकुलर नेटवर्क में मान लीजिए बहुत ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं एंड फर्दर आपका सिस्टम यहाँ पर है। अब ये सिस्टम जो है आपके रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर देते हैं एंड इतना ज्यादा ऑक्यूपाई कर देते हैं कि आपका सिस्टम जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। दिस इज एक्चुअली द डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि आपके पास अपनी सर्विस का अब एक्सेस रहा ही नहीं है। सो डीडीओएस अटैक जो होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर यूज होते हैं कॉमनली एंड फर्दर और साइबर थ्रेट्स के साथ मिलकर के ये ट्रैक्स यहाँ पर जो थ्रेट्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर इट्स द सोशल इंजीनियरिंग ट्रैक ओवर देयर। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि लोग ना यहाँ पर दिमाग लगाते हैं अपना कि किस तरह से लोगों की ना डिटेल्स निकाली जाए। लेट्स से द केस कि आपको यहाँ पर एक पेज दे दिया गया जो कि हूबहू यहाँ पर इंस्टाग्राम के पेज के जैसा दिखता होता है एंड फर्दर आपने इसके ऊपर विजिट किया एंड फर्दर यहाँ पर आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, लेकिन जब आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला तो आपका ये जो यहाँ पर पासवर्ड था वो ऑलरेडी किसी के पास और के पास यहाँ पर बैकएंड के ऊपर चला गया, आपकी ओरिजिनल इंस्टाग्राम की वेबसाइट भी ओपन हो गई, लेकिन आपको यहाँ पर ये जो पेज था वो स्पूफ किया गया था एंड आपकी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड था अब वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। एंड फर्दर इट कुड बी द MITM, दैट इज अ मैन इन द मिडल अटैक। जनरली जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमें लगता है कि मैं बात कर रहा हूं सीधा के साथ सर्वर के साथ, लेकिन मैन इन द मिडल अटैक के केस में क्या होता है कि इन बिटवीन द सर्वर कोई और पर्सन होता है जो यहाँ पर स्निफिंग कर रहा है, ठीक है, दैट इज पर्टिकुलर यहाँ पर स्निफिंग कर रहा है, यानी कि आप जो भी डाटा भेज रहे हैं, जो भी डाटा सर्वर से ले रहे हैं, वो डाटा किसी और पर्सन के थ्रू होकर जा रहा है एंड दैट इज अ मैन इन द मिडल अटैक हो गया। अब इस मैन इन द मिडल अटैक के केस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पर्सन के पास अवेलेबल है एंड इन केस अगर वो यूजर आईडी पासवर्ड आपके यहाँ से पहले ही कैरी कर लेता है तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, दिस इज सेट टू बी द पासवर्ड स्निफिंग ओवर दिया। देन इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू मालवेयर एंड द स्पाईवेयर अटैक। मालवेयर अटैक होता है जो आपके सिस्टम को हानि पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, वो मालवेयर अटैक होता है। स्पाईवेयर का मतलब होता है यानी कि कोई चीज आपकी सिस्टम में पड़ी रहेगी, हो सकता है की लोगो हो सकता है दैट कुड बी द की लॉगर ओवर दिया, यानी कि जो भी कीज आप अपने सिस्टम के ऊपर प्रेस करेंगे वो उस चीज को नोट करता रहेगा एंड उसे भेजता रहेगा किसी बैकएंड सर्वर के ऊपर एंड फर्दर यहां पर एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए जो यहां पर हैकर बैठा है वो पता कर सकता है कि क्या क्या डाटा आप एंटर कर रहे हो, आपके पासवर्ड्स, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, ये वो सब चीजें यहां पर पता की जा सकती हैं। फर्दर रिलेटेड टू पासवर्ड अटैक ओवर दिया। पासवर्ड अटैक पर्टिकुलरली क्या है, जहां पर इंफॉर्मेशन जो है पासवर्ड की चुरा ली जाती है सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू या किसी और टेक्निक के थ्रू, दैट इज अ पासवर्ड अटैक ओवर दिया। फर्दर रिलेटेड टू एपीटी, दैट इज एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ओवर दिया। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट के केस में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है या ग्रुप है वो पर्टिकुलरली अनऑथराइज्ड एक्सेस लेता है। लेट्स से कि ये यहां पर नेटवर्क है एंड यहां पर कोई लूप होल था जिसके थ्रू यहां पर इंडिविजुअल जो था एक बार एंटर कर गया। अब सिक्योरिटी को यहां पर पता लगा कि कोई पर्सन यहां पर पर्टिकुलरली एंटर किया है, क्योंकि मैं यहां पर नेटवर्क की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन नेटवर्क की बात कर रहा हूं, तो यहां पर एज जो सिक्योरिटी कंसर्न थे उनको पता लगा कि यहां पर कोई लूप होल था, कोई पर्सन एंटर कर गया। अब ये पर्सन यहीं पर ही प्रेजेंट रहेगा लंबे टाइम के लिए एंड डाटा जो होगा वो भेजता रहेगा, दैट इज एपीटी, दैट इज एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ओवर दिया। हैकिंग होती है
पर्टिकुलरली डिफरेंट तरह के हैकर्स होते हैं आपके पास। व्हाइट हैट हैकर्स भी हैं, आपके पास ब्लैक हैट हैकर्स भी हैं। अब ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं टोटली अनएथिकल काम करते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, डाटा डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या फिर पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज इट। मालवेयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि यहाँ पर सिस्टम या फिर नेटवर्क के ऊपर इंपैक्ट डालता है। रैंसमवेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एंड काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था पीछे। इसमें पर्टिकुलरली होता है कि एक सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाता है एंड ये कहा जाता है कि आप पहले हमें पैसे दो फिर हम आपका सिस्टम जो है वो रिलीज कर देंगे। इसी तरह से क्रिप्टो रैंसमवेयर होता है, उसमें कहता है जो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल फाइल्स होती है ना उनको क्रिप्ट यहाँ पर कर दिया जाता है, यानी कि किसी तरह से एनकोड कर दिया जाता है, किसी तरह से एनकोड कर दिया जाता है एंड जो यूजर है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो कहता है पहले पैसे दो फिर डिकोड करके देंगे, ठीक है, ऐसी चीज होती है, दैट इज अ क्रिप्टो रैंसमवेयर ओवर देयर। अब यहाँ पर तीन वेज क्या है जिसमें कंप्यूटर्स कॉमनली इन्फेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपके पास ईमेल आती है, आप ईमेल ओपन कर देते हो, मैलिशियस लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हो, उसकी अटैचमेंट होती है या फिर उसके ऊपर क्लिक कर देते हो एंड आपका सिस्टम अटैक हो जाता है। मालवेटाइजिंग हो सकती है, यानी कि मालवेयर एडवर्टाइजिंग हो सकती है, जब आप किसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करते हो वहां पर कोई मालवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा एंड नुकसान हो जाता है। ड्राइव बाय डाउनलोडिंग होता है, यानी कि आपके पास कोई ऐसी चीज आती है, आपको कहा जाता है डाउनलोड करो, आप उस चीज को डाउनलोड करने की कोशिश करते हो लेकिन आपको एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है, आपके सिस्टम में मालवेयर या स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं, राइट। फर्दर आइडेंटिटी थेफ्ट पर्टिकुलर क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब आपका कोई सर्वे हुआ, आप किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, वहां पर कोई सर्वे आपने एंटर किया, आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पर एंटर कर दी, वो डिटेल जो थी बाद में यूज हुई आप ही को थेफ्ट करने के लिए, आपको कहा गया आपका ये नाम है, ये है, वो है एंड आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके साथ यहाँ तो कोई अकाउंट ओपन कर लिया गया या उस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए पर्टिकुलरली किसी तरह की और दिक्कतें आ सकती हैं। तो एंड फर्दर डिफरेंट वेज जिसके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट थ्रू सर्वे फ्रॉम फॉर्म हो सकता है, फोन कॉल पे आपके डिटेल पूछ लिया, मेल के थ्रू डाटा पूछ लिया, या सर्वे आपको रेस्टोरेंट में दिया गया उसके थ्रू डाटा चला गया, या फिर पर्सन जो है आपके पास कॉल करता है कि आप हमारा प्रोडक्ट जो है वो ले लो एंड आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां पर बाद में क्या करती हैं, इस तरह के डाटा को आगे सेल कर देती हैं, ठीक है, पैसे के लिए। फर्दर इट्स रिलेटेड टू क्रिमिनल जो है वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा से डिटेल से डाटा निकाल सकते हैं एंड उसका बेनिफिट अपने खुद के बेनिफिट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं आज की डेट में, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू रैम स्क्रैपर। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि मालवेयर जो होता है आपके सिस्टम में डाल दिया गया, अब रैम में जो भी डाटा पड़ा है जैसे वो पर्टिकुलरली डाटा एक्सेस हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वो डाटा का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉड किया जा सकता है। खास करके इस तरह की चीज का इस्तेमाल पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल में किया जाता है, वहां पर पर्टिकुलरली डाटा जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है ना वो रैम में पड़ा होता है उसकी, तो रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होगी वो एक्सेस हो जाएगी, वहां से डाटा निकाल लिया एंड अल्टीमेटली उसका इस्तेमाल करते हुए फ्रॉड किया जा सकता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू स्निफिंग, यानी कि नेटवर्क में बैठा है बीच में बैठ करके आप डाटा को स्निफ कर रहे हो, दैट्स अ स्निफिंग ओवर देयर एंड इसका इस्तेमाल भी यहां पर फ्रॉड करने के लिए किया जा सकता है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर सिस्टम के बीच में बैठे बैठे वो पर्सन आपके पासवर्ड एंड यूजर आईडी को जान लेता है तो दैट इज कॉल्ड द पासवर्ड स्निफिंग ओवर दिया। फर्दर स्पूफिंग की बात आती है, स्पूफिंग इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, यानी कि आपको मैसेज भेजा जाता है किसी अनऑथराइज पर्सन की तरफ एंड वो कहता है कि वो ट्रस्टेड पर्सन है। लेट्स से द केस कि मुझे एचडीएफसी की तरफ से मैसेज आए लेकिन वो एचडीएफसी की तरफ से मैसेज हो ना, लेकिन वो ऐसे लगे कि एचडीएफसी की तरफ से मैसेज है, वो क्या पर्टिकुलरली स्पूफिंग है। एंड फॉर द फिशिंग क्या होती है, फिशिंग टेक्निक में पर्टिकुलरली जो फ्रॉडस्टर होता है ना वो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू, यानी कि एसएमएस के थ्रू, फोन के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू, वो यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें भेजने की कोशिश करता है एंड आपका डाटा लेने की कोशिश करता है, स्पूफिंग ही करता है बेसिकली तरह से, ठीक है। फिर होता है एसमेशिंग। एसमेशिंग के केस में खास करके बेसिकली फिशिंग की टेक्निक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसएमएस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हम जैसे कहे कि आपके पास ये आपका कार्ड जो एक्सपायर हो जाएगा एंड फॉर दिस लिंक के ऊपर क्लिक करके ना आप अपना कार्ड की डिटेल्स एंटर कर दो, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली एसमेशिंग है, ठीक है, आपको एसएमएस आया। विशिंग होता है आपको वॉइस कॉल आई है, जैसे कि जामताड़ा के केस में था, ठीक है, दैट इज अ वॉइस फिशिंग ओवर दिया। फिशिंग इन जनरली होता है इसके केस में वेबसाइट होती है, फिशिंग इन जनरल के केस में वेबसाइट होती है, जैसे मैं आपको बताया ना हूबू जैसे लगेगी, जैसे मान लो कि पर्सन में लिंक के फिर क्लिक किया ऐसे लगेगा एचडीएफसी की वेबसाइट है, वैसे ही यहाँ पर रिटेल यूजर कॉर्पोरेट यूजर लिखा होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, आपको लगेगा बिल्कुल सेम ही वेबसाइट है क्योंकि आप यूआरएल की तरफ ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड भर दिया, सब चीजें एंटर कर दी, जैसे आपने सबमिट किया आपका सारा का सारा डाटा जो था वो चला गया यहाँ पर हैकर के पास, राइट। एंड फॉर दैट रिलेटेड टू फार्मिंग, फार्मिंग बेसिकली दो टर्म्स को मिलाकर के बना, फार्मिंग क्या है, दो टर्म्स को मिलाकर बना है, एक बना है फार्मिंग से, दूसरा बना है फिशिंग से। अब जो हैकर होता है या जिसको हम फार्मर भी कहते हैं वो बेसिकली इंटरनेट यूजर से जो चीजें करवाना चाहता है वो चीजें करवाने की कोशिश करता है, वो फेक वेबसाइट प्रेजेंट कर देता है यहाँ पर लेजिटिमेट की जगह पर। एंड फर्दर ये स्पूफ वेबसाइट जो होती है इसका मेन पर्पस क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है यूजर नेम पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या और जो चीजें हैं वो हमारे पास आ जाए, या फिर इस वेबसाइट के थ्रू हम मालवेयर जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर दें उस यूजर की सिस्टम के ऊपर, ठीक है, दैट इज अ फार्मिंग ओवर दिया। फॉर इट्स रिलेटेड टू सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इन्वेस्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री ओवर दिया। पेमेंट फ्रॉड
रिपोर्टिंग गाइडेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड इट्स रिलेटेड टू सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री ओवर देयर। तो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर रिपोर्टिंग जो है वो जनरली नियर रियल टाइम बेसिस के ऊपर करनी चाहिए एंड एंटिटीज को यहाँ पर इस चीज को इंश्योर करना है कि जो कोई भी फ्रॉड यहाँ पर होता है, लेट्स से केस कि यहाँ पर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेट्स से बैंक है, एनबीएफसी है, उसमें किस तरह का फ्रॉड हुआ, तो जो भी कोई फ्रॉड होंगे वो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करने पड़ेंगे एंड यहाँ पर ईडीएसपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा सबमिशन पोर्टल का इस्तेमाल करके 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जिस दिन को यहाँ पर फ्रॉड हुआ है तो वहां पर 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, उसको आगे रिपोर्ट करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। एंड रिपोर्टिंग टाइमलाइन जो है उनको बार बार आगे आगे क्या करना है, कम करना है। जैसे पहले 7 दिन का फिर करेगा, फिर 5 दिन में, फिर 3 दिन में, 2 दिन में, एंड ऑलमोस्ट रियल टाइम के ऊपर उसको लेके जाना कि साथ के साथ जो इन्फॉर्मेशन है फ्रॉड के रिलेटेड वो यहाँ पर सभी के पास अवेलेबल हो। फर्दर रिलेटेड टू फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ओवर देयर। तो फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज आती है सीएफआर, इज द सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री ओवर देयर। तो सीएफआर बेसिकली रिटर्न्स को मॉनिटर करता है, यानी कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पर अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे कि यहाँ पर उनके साथ फ्रॉड हुआ है एंड फर्दर उनको यहाँ पर एक्सेस दिया जाता है यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू। तो एक वेबसाइट बेस्ड यहाँ पर सोल्यूशन है जो कि सर्चेबल है, जिसमें रिकॉर्ड्स को आप सर्च कर सकते हो एंड मंथली सर्टिफिकेट्स यहाँ पर बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजना पड़ेगा कि उन्होंने जो भी फ्रॉड हुए उन सभी को यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया है। देन फर्दर स्टेट टू एफआईआर, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ओवर देयर। यानी कि जैसे ही आपके पास कोई फ्रॉड डिटेक्ट होता है तो ब्रांचेस को यहाँ पर स्टेप लेने पड़ते हैं रिलेटेड टू जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है एंड साथ ही साथ जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनके साथ इन टच रहना पड़ता है एंड फर्दर उनकी यहाँ पर एडवाइस लेनी पड़ती है कि आगे एफआईआर रजिस्टर करवानी है कि नहीं करवानी है। फर्दर डिलेज इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स ओवर देयर। तो बैंक्स को यहाँ पर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए इन केस यहाँ पर जो अगर कोई फ्रॉड हुआ है उसको आरबीआई के पास रिपोर्ट नहीं किया गया, अदरवाइज आरबीआई पेनल्टी डाल सकता है अगर उनके केस में चीज आती है। देन इट्स रिलेटेड टू मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो भी फ्रॉड्स होंगे उनसे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होगी उनको क्वार्टरली रिव्यू किया जाएगा, जैसे कि जून के एंड में, सितंबर के एंड में, दिसंबर के एंड में उनको यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। साथ के साथ जो ऑडिट कमेटी है बोर्ड की उनके पास ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट की जाएंगी कि ये फ्रॉड हुए थे, इनकी ये यहाँ पर कहानी है एंड इस तरह से ये चीजें हुई हैं। एंड फर्दर बैंक्स को यहाँ पर एक एनुअल रिव्यू भी करना पड़ेगा फ्रॉड का एंड फर्दर जो भी उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास या लोकल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन के पास यहाँ पर डाटा सबमिट करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर मॉनिटरिंग सिस्टम में मेन एस्पेक्ट क्या रहने वाले हैं कि बैंक्स के पास क्या एडिक्वेट सिस्टम है जिसके साथ फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है, क्या वो इन प्लेस है जिसके साथ शॉर्टेस्ट टाइम में हम फ्रॉड का पता लगा सकते हैं एंड फर्दर जो भी फ्रॉड हुआ है उनको स्टाफ एंगल के साथ भी देखना पड़ेगा एंड अगर कोई स्टाफ एंगल के साथ फ्रॉड हुआ है तो उसको यहां पर विजिलेंस सेल के पास भी रिपोर्ट करना पड़ेगा इन केस ऑफ द पीएसबी। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो यहां पर आपके पास सीवीओ होते हैं, यानी कि जो आपके पास चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है या सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर होता है उसके पास यहां आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड फर्दर अगर डेटरेंट पनिशमेंट जो है, अगर आपको पता लग गया कि स्टाफ एंगल है तो वहां पर आपको पनिशमेंट देनी पड़ेगी, जहां कई पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल उनको पनिशमेंट दो, ठीक है। तो उसके रिलेटेड ये मेन एस्पेक्ट है जो कि आपकी मॉनिटरिंग में होनी चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम में होनी चाहिए, ओके। तो डाटा फ्रॉड से रिलेटेड किसके पास देना है, वो आपको प्रेजेंट करना है यहाँ पर एसीबी के पास। वैसे क्वार्टरली रिव्यू करना है लेकिन एनुअल रिव्यू भी जरूरी है, राइट। एंड फर्दर रिलेटेड टू स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड, दैट इज CSCBF, स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड ओवर देयर। तो देखिए वैसे तो एसीबी जो होती है यानी कि जो आपकी ऑडिट कमेटी है बोर्ड की, वो फ्रॉड से रिलेटेड सारी चीजों को इन जनरल देखती है, लेकिन आरबीआई ने फर्दर ये कहा कि एक आप ना एससीबीएफ भी बना लो, यानी कि स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड भी बना लो, जो कि यहाँ पर जो भी केसेस होंगे ना फ्रॉड को उनको भी मॉनिटर करेगी। वो रीजंस देखेंगे कि डिटेक्शन में यहाँ पर डिले क्यों हुआ, फ्रॉड इतनी लेट क्यों डिटेक्ट हुआ एंड फर्दर अगर सीबीआई के पास केस जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में केस जाता है एंड यहाँ फिर रिकवरी पोजीशन क्या उसको भी मॉनिटर करेगा जो यहाँ पर एससीबीएफ होगा। एंड साथ के साथ जो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी उसको भी चेक किया जाएगा सभी के सभी लेवल्स के ऊपर कि फ्रॉड के अगर स्टाफ एंगल था तो स्टाफ के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा एंड फर्दर बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए ये एक्शन लेना जरूरी है। एंड फर्दर इस चीज को भी रिव्यू करना है कि हमारे पास एफिकेसी ऑफ द रिसोर्सेज है जिसके थ्रू हम यहाँ पर रेमेडियल एक्शंस ले सकते हैं ताकि ये चीज दोबारा से रिपीट ना हो। यानी कि कहने का मतलब है हमें इंटरनल कंट्रोल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये कहा कि ठीक है आपके पास एसीबी है लेकिन एससीबीएफ भी आप यहाँ पर कंस्टिट्यूट कर लो, राइट। अभी हम बात करने वाले नए फ्रेमवर्क के बारे में लोन फ्रॉड्स, आपका लोन फ्रॉड्स को लेकर के। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है आरएफए यानी कि रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स के बारे में। रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स पर्टिकुलरली वो अकाउंट्स होते हैं जहां पर ना काफी ज्यादा हाई रिस्क है। रेड फ्लैग का मतलब ये होता है जहां पर काफी ज्यादा हाई रिस्क है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकती है या जिसमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी ना अर्ली वार्निंग सिग्नल्स यहाँ पर बताए थे, तो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के बारे में देखेंगे। तो बैंक्स को ना इन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिग्नल बेसिकली एक तरह का अलर्ट होता है या फिर एक तरह की वीकनेस होती है, रॉन्गडिंग होती है, जो पर्टिकुलर आपको ये बताती है कि इसमें दिक्कत हो सकती है, ओके। एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इलस्ट्रेशन दी थी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स से रिलेटेड। लेट्स से द केस कि अगर डिफॉल्ट है
डिस्प्यूटेड अमाउंट से रिलेटेड, यानी कि जो भी यहाँ पर डिस्प्यूटेड अमाउंट है, आपका अपने कोई अमाउंट देना था स्ट्रेचुररी, आपकी बॉडी को कोई अमाउंट पे करना था, लेट्स से टैक्स पे करना था, मैं टैक्स पे नहीं किया, एंड फर्दर मैंने वहां पर एनुअल रिपोर्ट में उसको लिखता जा रहा हूँ लेकिन मैं पे नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, या फिर आपके हाई वैल्यू के जो चेक्स थे, ड्राफ्ट थे, वो यहाँ पर आपके बाउंस हो रहे हैं, एंड फर्दर हो सकता है कि आपने यहाँ पर अपने स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट को काफी बार चेंज कर लिया है, ठीक है, आपको पता लग रहा है क्या चीज करनी है, या फिर आपके बिल्स काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, किसी बैंक के साथ लंबे टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग है, जो फॉरेन बिल्स है, एंड फर्दर आपके बिल जो है ओवरड्यू होते जा रहे हैं, या फिर आपके यहां पर पेमेंट जो है वो यहां पर डिले होती जा रही हैं, जो अपने अपने वेंडर्स को क्रेडिटर्स को पेमेंट देनी काफी डिले हो गई हैं, या फिर आपकी जो बैंक गारंटीज थी या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट थी वो यहां पर इन्वोक होती जा रही हैं, यानी कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, वो इन्वोक होती जा रही है, एंड अंडर इंश्योर्ड है आपके पास, यहाँ तो इन्वेंट्री आपकी यहाँ ओवर इंश्योर्ड है, या फिर आपकी जो इन्वेंट्री की में और डिटेल चाहिए, टैन की डिटेल चाहिए या फिर और डिटेल चाहिए, वो प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर कोलेटरल सिक्योरिटीज के बीच में भी आपके डिस्प्यूट है। तो ये बेसिकली अर्ली वार्निंग सिग्नल है, जिनसे ये पता लगता है कि ये पर्सन ना कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, आगे आने वाले टाइम में दिक्कत आ सकती है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू लीगल ऑडिट ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट, जहां कहीं भी बैंक जो है वो यहां पर टाइटल डीड्स के साथ डील कर रहा है, वहां पर ये कहा गया कि जहां कहीं भी क्रेडिट एक्सपोजर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वहां पर पर्टिकुलरली आपको लीगल ऑडिट करवानी चाहिए, एंड जो भी टाइटल डीड्स अवेलेबल है उनकी रीवेरिफिकेशन आपको करवानी चाहिए, राइट। एक्सरसाइज करना तब तक आपने ये रीवेरिफिकेशन करवानी है जब तक आपके पास ना यहां पर जो लोन है वो पूरा का पूरा रीपे नहीं हो जाता, राइट। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू विजिलेंस फंक्शन इन द बैंक्स ओवर देयर। सो विजिलेंस का मतलब होता है कि आप देखरेख करो, एंड फर्दर कॉशियस रहो, यानी कि सावधान रहो किसी तरह के डेंजर को लेकर के, जो कि यहाँ पर चीज हो सकती है, एंड आपको अलर्ट मोड में रहना है। एंड बैंक्स को यहाँ पर इस चीज को एंश्योर रखना है कि जो भी पैसा यहाँ पर डिपॉजिटर से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो मिस यूटिलाइज ना हो, या फिर किसी और पर्सन के एक पर्सन के गेन के लिए वो पैसा अवेलेबल ना हो, एंड साथ के साथ जो पैसा डिपॉजिटर्स का है, जब भी वो डिमांड करे वो पैसा उनको वापस भी मिल पाए, ये पर्टिकुलर चीज बैंक्स को खास करके एंश्योर करनी होती है। तो जो विजिलेंस होती है वो तीन तरह की होती है, एक होती है प्रिवेंटिव विजिलेंस। प्रिवेंटिव विजिलेंस का मतलब होता है कि हमें ऐसे रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स बनाने हैं जिसके साथ हम रॉन्ग डूइंग्स को या मिसकंडक्ट को रोक पाए। डिटेक्टिव विजिलेंस वो होती है जिसके हम थ्रू यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं, फंक्शंस होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं, उनको यहाँ पर अच्छे से स्कैन करते हैं, उनको अच्छे से गो थ्रू करते हैं, उनको यहाँ पर पर्टिकुलर स्क्रूटिनाइज करते हैं, ताकि हम चीजों को डिटेक्ट कर पाए कि किस तरह का फ्रॉड हुआ है। यानी कि हम यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस को, माल प्रैक्टिसेस को, नेग्लिजेंस को, मिसकंडक्ट को यहाँ पर पता लगा सकते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, यहाँ पर बेटर सर्विस कर सकते हैं पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स की, एंड साथ के साथ यहाँ पर हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए उन पोस्ट के ऊपर जो सेंसिटिव पोस्ट हैं, एंड फर्दर वो ऑफिसर जो डाउटफुल इंटेग्रिटी के हैं, एंड खास करके हमें उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एंड ताकि हम फ्रॉड को डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइम पर कर पाए। देन इट इज रिलेटेड टू प्यूनिटिव विजिलेंस ओवर दिया। प्यूनिटिव विजिलेंस में होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना, एंड फर्दर जो भी एविडेंस हुए हैं उनको पर्टिकुलरली कलेक्ट करना, एंड इस चीज को यहाँ पर जो एलिगेशन है उसको सच्चाई में बदलना कि ये जो पर्सन था एक्चुअल में इसने फ्रॉड किया था, एंड उस पर्सन को पनिशमेंट भी देना, ठीक है। एंड दैट्स द थिंग रिलेटेड टू द थ्री टाइप्स ऑफ द विजिलेंस ओवर दिया, प्रिवेंटिव विजिलेंस, डिटेक्टिव विजिलेंस एंड प्यूनिटिव विजिलेंस ओवर दिया। अब यहां पर मेन एम क्या है विजिलेंस का बैंक्स में, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो प्रिवेंटिव विजिलेंस का जो मेन होता है वो मेन होता है कि हमने यहां पर जो भी लैप्स हो रहे हैं, जो भी कमी पेशियां, उनको यहां पर कम करना, उनको रिड्यूस करना है। डिटेक्टिव विजिलेंस का मेन एम क्या है कि जो भी लैप्सेस हो चुके हैं उनको यहां पर हमने आइडेंटिफाई करना, उनको वेरीफाई करना। एंड प्यूनिटिव विजिलेंस का मतलब होता है कि अगर यहां पर कोई लैप्स हुआ है तो उस पर्सन को यहां पर पकड़ना, एंड फर्दर उनके ऊपर पनिशमेंट लगाना, ठीक है। डिटेक्टिव एंड प्यूनिटिव विजिलेंस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहां पर एक तरह के कामकाज के ऊपर काफी ज्यादा हाई रिवॉर्ड सेट कर दूंगा, लेट्स से केस कि अगर मैं कहूं कि अगर ये चीज गलती किसने की ना तो 5 लाख रुपए का उसके ऊपर फाइन लग जाएगा, लेकिन मैं आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी टेक्निक रखूंगी ना, तो यहां पर अगर मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो प्यूनिटिव का कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा, ठीक है। तो मुझे यहां पर ये समझने की जरूरत है कि जो प्यूनिटिव है एंड डिटेक्टिव है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एंड प्रिवेंटिव विजिलेंस जो है वो पर्टिकुलरली सेंट्रल रोल यहां पर प्ले किया जाता है यहां पर इन द विजिलेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि प्रिवेंटिव विजिलेंस जो है वो सेंट्रल रूल रखती है किसमें? आरबीआई की विजिलेंस में। एंड फर्दर अगर हम ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें विजिलेंस वर्क की, तो आरबीआई जो है वो पर्टिकुलरली किसे सेटअप किया है? आरबीआई ने सीवीसी को, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस सेल को यहां पर सेटअप किया है। जो विजिलेंस गाइडलाइंस यहां पर इशू की जाती है सीवीसी के द्वारा, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा रहे, एंड साथ के साथ हम एक ऐसा कल्चर प्रमोट करें जो ओनेस्ट हो, जिसमें लोग अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखें, एंड साथ के साथ जो ओवरऑल यहां पर विजिलेंस है, यानी कि जो हम देख रेख कर रहे हैं उसको हम ज्यादा बेटर बना पाए। एंड यहां पर प्रिवेंटिव विजिलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम यहां पर चाहते हैं कि
जो भी लोग हैं, जो भी इंप्लॉयज हैं, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए रखें, एंड जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए उनको फॉलो किया जाए, एंड साथ के साथ इसके साथ ही बैंक का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। प्रिवेंटिव विजिलेंस जो है, इसमें हम प्रोसीजर्स को, प्रोसेसेस को सेटअप करते हैं ताकि रॉन्ग डूइंग्स ना हो, एंड साथ के साथ हम ऐसे कामकाज को बनाते हैं ताकि जो भी मिसकंडक्ट हो सकता था वो मिसकंडक्ट यहां पर ना हो। एंड फर्दर क्या मेजर्स यहां पर ली जा सकती हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। हम यहां पर पर्टिकुलरली इंस्पेक्शंस कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू कि हम यहां पर सेंसिटिव एरियाज जो है बैंक्स में उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस एरिया में ज्यादा फ्रॉड हो सकते हैं, एंड हमें यहां पर कंट्रोल रिटर्न्स को अच्छे से देखरेख भी करनी है। सिर्फ रिटर्न्स लेना काफी नहीं है, आपको उनको देखरेख भी करनी पड़ेगी। हम रेगुलर सरप्राइज विजिट रख सकते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जिन जहां पर डेफिनेटली फ्रॉड ज्यादा होते हैं, एंड फर्दर जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी जॉब रोटेशन कर सकते हैं, उनकी ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड जो भी स्टाफ अकाउंट्स हैं उनको अच्छे से देखरेख करो कि उनमें कोई ज्यादा अमाउंट तो नहीं है, एंड फर्दर प्रॉपर सर्वेलेंस रखनी पड़ेगी जिनकी हमें पर्टिकुलरली जिनके ऊपर डाउट है, जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, या फिर जो अग्रीड लिस्ट में आते हैं उनकी प्रॉपर सर्वेलेंस करनी पड़ेगी। अब प्रिवेंटिव विजिलेंस जो होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के केस में कैसे हो सकती है, जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप शुरू कर देते हो तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ हम फिशिंग अटैक से बच सकते हैं, या फिर एक एक्स्ट्रा हमारे पास वेरिफिकेशन लेयर ऐड हो जाती है जब हम लॉग इन करते हैं यहां पर किसी सेंसिटिव एप्लीकेशन के ऊपर, तो डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलता है। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू विजिलेंस एंगल या फिर सीवीओ के बारे में देखते हैं। तो उस विजिलेंस एंगल की अगर बात करते हैं तो जो सीवीओ होता है यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो होता है बैंक का, उसे यहां पर ऑथराइज किया गया है कि वो विजिलेंस एंगल देख सकता है किसी पर्टिकुलर केस में। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर केस था, कोई फ्रॉड केस था, उसमें विजिलेंस एंगल अगर लगता है सीवीओ को तो वो उस केस को यहां पर देख सकते हैं। तो विजिलेंस एंगल के साथ कौन से एक्शन लिए जाएंगे, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो यहां पर मान लीजिए अगर कोई पर्सन जो था वो लीगल जो फीस ले रहा है वो तो ले रहा है, लेकिन साथ के साथ और पैसे लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें विजिलेंस एंगल बन सकता है। एंड अगर आप यहां पर बिना कुछ कंसिडरेशन के अगर किसी से कोई चीज लेने की कोशिश करते हो, वहां पर विजिलेंस एंगल बन सकता है। अगर कोई पर्सन जो है वो पर्टिकुलरली किसी पर्सन से पर्टिकुलरली कोई बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है, वैल्यूएबल थिंग लेने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर विजिलेंस एंगल बन सकता है। अगर आप यहां पर पर्टिकुलरली आपके पास जो एसेट्स हैं वो आपकी सैलरी के साथ या सोर्सेज ऑफ इनकम के साथ मेल नहीं खाते हैं, वहां पर भी विजिलेंस एंगल बन सकता है। अगर आपने यहां पर पर्टिकुलरली मिस एप्रोप्रिएशन करी है, या फिर धोखाधड़ी की कोशिश करी है, या चीटिंग की कोशिश करी है, वहां पर भी विजिलेंस एंगल बन सकता है। तो इन केसेस में विजिलेंस एंगल बन सकता है। अगर डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स की बात करें तो यहां पर डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट किस तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता है कि फाइल्ड विदाउट इंक्वायरी, यानी कि आपने कोई भी इंक्वायरी नहीं करी, इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, उसको फाइल कर लिया, या फिर आपने पहले वेरिफिकेशन करी, उसके बाद आपको लगा कि हाँ यहां पर होना चाहिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद आपने फाइलिंग करी, या फिर आपने कंप्लेंट सेल को फॉरवर्ड कर दी क्योंकि आपको उसमें कोई भी विजिलेंस एंगल नहीं देखा, आपने वेरिफिकेशन की, आपको कोई भी विजिलेंस एंगल नहीं दिखा, आपने कंप्लेंट सेल में उसे फॉरवर्ड कर दिया, या सिंपली आपने उस केस को सीबीआई को पास कर दिया अगर काफी ज्यादा उसमें घपला हो सकता है। एंड फर्दर आपने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी, ये भी केस यहां पर बन सकता है। तो इस तरह से जो कंप्लेंट्स विजिलेंस के पास आती हैं उनको फर्दर आगे डील किया जा सकता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू प्यूनिटिव रोल ऑफ द सीवीओ, यानी कि सीवीओ का जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है उसका प्यूनिटिव रोल क्या हो सकता है। तो पहली चीज ये है कि यहां पर ये एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, या फिर चार्जशीट इशू कर सकते हैं, या इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं, या फिर इंक्वायरी रिपोर्ट बना सकते हैं कंसिडरेशन के ऊपर, या फिर पेनल्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो यहां पर प्यूनिटिव रोल यहां पर सीवीओ का रहता है जिसमें पनिशमेंट भी दे सकते हैं, राइट। एंड फर्दर डिटेक्टिव एंड सर्विलेंस रोल क्या रहता है सीवीओ का, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो दोनों ही जो ये रोल है डिटेक्टिव एंड सर्विलेंस का रोल है, दोनों ही इंटर रिलेटेड है। जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं ये यहाँ पर सर्विलेंस विजिलेंस को यहाँ पर फील्ड जो भी होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, एंड ये पर्टिकुलर जो भी मटेरियल्स एक्सपोज है, लेट्स से देखिए इसकी यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में फ्रॉड हुआ है, तो यहाँ पर इसको ये क्या करेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर इसको इंस्पेक्ट करेंगे कि किस तरह के फ्रॉड यहाँ पर हो सकते हैं, एंड उसके बेस पर यहाँ पर अपनी जजमेंट जो होगी देने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसके बेस पर यहाँ पर सर्विलेंस करते हैं एंड उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड सीवीओ को यहाँ पर ऑथराइज किया गया है कि यहाँ पर हेड ऑफ सर्विलेंस विजिलेंस का यहाँ पर ये रोल प्ले कर सकते हैं, एंड ये वो मशीनरी है विच इज बीइंग एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द सीवीसी। ठीक है, तो दैट इज अ सेंट्रल जो विजिलेंस सेल है उसकी यहाँ पर एक्सटेंडेड आर्म है, दैट इज अ सर्विलेंस विजिलेंस मशीनरी ओवर देयर, राइट। एंड फॉर द इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं यहाँ पर विजिलेंस डिपार्टमेंट की, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लेट यू डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन। तो एक डिसीजन यहां पर कि वेदर यहां पर कोई इरेगुलरिटी एग्जिस्ट करती है, कंप्लेंट या फ्रॉड है या नहीं है, वो पर्टिकुलर बैंक का सीवीओ लेगा। एंड फॉर द फैक्ट फाइंडिंग करनी है रिलेटेड टू वेदर कुछ सब्सटेंस यहां पर एलिगेशंस लगाई है, वो भी यहां पर डिसीजन किसके पास है, सीवीओ के पास है। एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी कंसर्न्ड एम्प्लॉय है, ऑफिशियल है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना वर्जन रख सकते हैं फैक्ट्स का। एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करें तो यहां पर टाइम लिमिट जो है आपके पास डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को लेकर के, लेट्स हैव अ लुक एट इट।
तो ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहा गया कि अगर दो सक्सेसिव आपकी इंटरनल जो रेगुलर ऑडिट होती है, यानी कि इंटरनल जो ऑडिट हुई रेगुलर फेज में, जो इंटरनल आपकी ऑडिट्स हुई, अब दो सक्सेसिव इंटरनल ऑडिट यहां पर अगर हो चुकी हैं, या फिर अगर 4 साल का टाइम निकल चुका है, विच सो एवर इज लेटर, तो अगर ये टाइम लैप्स हो चुका है, तो यहां पर आप किसी पर्सन या एम्प्लॉय या ऑफिशियल के खिलाफ कोई भी चीज नहीं जायज दायर कर सकते कि उसने किसी तरह का कोई एंगल उसका रहा या नहीं रहा। ये लेकिन चीज जो है वो फ्रॉड केस में यहां पर लागू नहीं होगी, ना ही अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है उस केस में भी यहां पर ये चीज लागू नहीं होगी। या फिर उन केसेस में जहां पर एम्प्लॉय मैलाफेड इंटेंशन के साथ उसने वो चीज करी है, इंटेंशनल चीज करी है, वहां पर भी ये टाइम लिमिटेशन लागू नहीं रहेगी, राइट। अदरवाइज यहां पर अगर इन जनरल केस में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो ये नहीं कि उसके ऊपर कोई केस फाइल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर दो सक्सेसिव जो इंटरनल ऑडिट से वो निकल गई हैं, या 4 साल, जो भी इसमें से चीज बाद में होगी, उसके हिसाब से यहां पर ये चीज शामिल रहेगी, टाइम लिमिट ये बनी रहेगी। फर्दर इट्स रिलेटेड टू रोल ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ओवर द डीए ओवर द, तो डीए जो है वो यहाँ पर एक्शन को इनिशिएट करती है, एंड फर्दर क्या एक्शन लेना चाहिए वो यहाँ पर सीवीओ को आगे रिकमेंड भी करती है, ताकि आगे यहाँ पर सीवीओ की एडवाइस ली जा सके। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होती है वो यहाँ पर पहली चीज है एक्शन सोचती है कि क्या पुनिटिव एक्शन लिया जाएगा, एंड फर्दर सीवीओ को भी भेजती है, कि सीवीओ को भेज देती है कि ये चीज हो सकती है, एंड फर्दर यहाँ से एडवाइस भी लेती है आगे। That is a disciplinary authority over there. Now let's have a look at the role of the vigilant department over there. लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊं कि जो डीए है वो अपना अनबाइज्ड माइंड भी चलाती है एंड अपने डिसीजंस भी लेती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रोल ऑफ द विजिलेंस डिपार्टमेंट ओवर देयर। अब जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर पर्टिकुलरली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है विजिलेंस मैटर्स के ऊपर। एंड फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स ओवर देयर। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या होती है, की जाती है, ताकि यहाँ पर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसको हेल्प मिल पाए, ताकि कंक्लूजन निकाला जा सके कि जो पर्सन है उसके खिलाफ कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसका कितना इसमें उसका हाथ था, एंड फर्दर उसने क्या पनिशमेंट उसको दी जानी चाहिए। एंड जब भी ऐसी कोई चीज की जाएगी तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो यहाँ पर प्रोसीडिंग्स के ऊपर लागू होंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी पर्सन को बिना सुनवाई के उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जाएगा, एंड जो पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया गया उसको पता होना चाहिए कि किस हद तक, किस डिग्री के इल्जाम उसके ऊपर लगाए गए हैं, एंड अक्यूज को यहां पर एक बार मौका जरूर दिया जाएगा कि वो अपना एविडेंस यहां पर सामने जरूर रखे अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। एंड दैट इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड ओवर देयर। एंड फॉर उसके बाद क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की बात करते हैं, तो डीए जो है यानी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो अपना माइंड इंडिपेंडेंटली लगाते हैं, लॉजिकली लगाते हैं, अनबायस्ड मैनर में लगाते हैं, एंड जो भी पनिशमेंट होगी वो यहां पर पर्टिकुलरली जो भी मिसकंडक्ट किया गया था पर्सन के द्वारा उसके बेस पर वो अपनी पनिशमेंट बताते हैं कि ये पनिशमेंट यहां पर हम अवार्ड दे रहे हैं। एंड फॉर द मेजर पेनल्टीज क्या हो सकती हैं ऑफिसर कैटेगरी स्टाफ के केस में, कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए कहा जा सकता है, या फिर उन्हें यहां पर सर्विस से निकाला जा सकता है, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, फ्यूचर इंप्लॉयमेंट के लिए नहीं किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि उनको ऑनरी यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए निकाल दिया जाए फॉर फ्यूचर इंप्लॉयमेंट ओवर देयर। ओके, एंड फर्दर इट के इन द केस अवार्ड स्टाफ के केस में क्या क्या हो सकती हैं, हो सकता है कि उनको बिना किसी नोटिस के डिसमिस कर दिया जाए, या फिर उनको यहां पर सर्विसेज से रिमूव कर दिया जाए विद सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स, यानी कि जो भी सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स हैं वो उनको मिलेंगे, एंड फॉर द फ्यूचर इंप्लॉयमेंट उनकी यहां पर डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, या फिर उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जा सकती है सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स के साथ, एंड फर्दर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा फ्यूचर इंप्लॉयमेंट के लिए, या फिर उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स के साथ विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द फ्यूचर इंप्लॉयमेंट ओवर देयर, या फिर उनको लोअर स्टेज पर लेकर के आया जा सकता है इन द स्केल ऑफ पे अप, ठीक है। यानी कि जो उनको पे दी जा रही थी दो कम स्केल्स तक उनको पे की जा सकती है, जैसे मान लीजिए स्केल 5 था कोई, एंड उसको स्केल 3 की पे यहां पर की जा सकती है, एंड मैक्सिमम ये 2 साल की ऐसी चीज जो है वो यहां पर कंसिस्टेंटली की जा सकती है, राइट। एंड अगर हम स्टिफ या स्वेयर पनिशमेंट की बात करें तो उसमें उसका मतलब होता है कि पर्सन को उसकी जॉब से रिमूव कर देना, डिसमिस कर देना, या कंपल्सरी रिक्वायरमेंट रिटायरमेंट दे देना, वो आपकी स्वेयर पनिशमेंट में आती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनको काइंडली गो थ्रू जरूर करें क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेजर पेनल्टी जो ऑफिसर स्टाफ के केस में हो सकती है वो है कंपल्सरी रिटायरमेंट या सर्विस से निकाल देना, डिस्क्वालिफिकेशन लेकिन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से नहीं होगी, या फिर डिसमिस कर देना, ठीक है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से भी। एंड फॉर द अवार्ड स्टाफ के केस में क्या है, बिना किसी नोटिस के डिसमिस कर देना, या तो कंप्लीटली डिसमिस कर दिया, या फिर रिमूव कर दिया सुपरएनुएशन बेनिफिट्स के साथ, या फिर कंपल्सरी रिटायर कर दिया सुपरएनुएशन बेनिफिट्स के साथ, या फिर आपने सर्विसेज से डिस्चार्ज कर दिया सुपरएनुएशन बेनिफिट्स के साथ, या फिर आपने सैलरी को कम कर दिया, 2 स्केल्स तक आप कम कर सकते हो, लेकिन वो मैक्सिमम 2 साल तक का ही कम कर सकते हो, राइट। Now let's have a look at the 12 sutras for bankers for a better fraud risk management in the banks over there. तो यहां पर जो
एस एस मुंद्रा है जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने 12 सूत्र बताए थे जिसके तहत जो बैंकर्स हैं वो बेटर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं बैंक्स में। सूत्र 1 जो है वो ये कहता है कि हैव अ रोबस्ट फ्रॉड रिस्क आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, यानी कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन ऐसे चाहिए कि साथ के साथ पता लग जाए, आपका प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, आपके पास मिटिगेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए, यानी कि चारों आंखें आपकी ओपन होनी चाहिए। दैट प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड। सूत्र 2 ये कहता है कि आपको 5 C's को फॉलो करना है। दैट इज अ कैपेसिटी, रिलेटेड टू कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल, कंडीशंस, कैरेक्टर ओवर दिया। यानी कि कैपेसिटी क्या थी, बोरोर की उसके हिसाब से लोन दो, कैपिटल पर्टिकुलरली जितना लोन देने वाले हो, कोलेटरल आपने सिक्योरिटी ली कि नहीं ली है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस की है उसके बारे में कंडीशंस होगी, एंड कैरेक्टर की आपकी इंटीग्रिटी क्या थी जब आपने उसको लेंडिंग करी है। सर थर्ड जो सूत्र है दैट्स रिलेटेड टू कल्चर ऑफ एटर्नल विजिलेंस ओवर देयर, यानी कि आपके पास जो विजिलेंस है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए। एंड फर्दर फ्रॉड जो होता है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आपके पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस होनी चाहिए। फोर्थ इट्स रिलेटेड टू कि आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस का यहाँ पर जो सोल्यूशन होता है वो ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होता है। जो ये सूत्र है आपको ऐसा यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव एन आइडिया, जस्ट आपको ये याद रखना है कि किसने यहाँ पर दिए थे। तो एस एस मुंद्रा जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने यहाँ पर 12 सूत्र सजेस्ट किए थे, तो 12 सूत्र सजेस्ट किए थे, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर द मोटा मोटा आइडिया चाहिए कि क्या क्या चीजें उन्होंने गई थी, तो उन्होंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहा था कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई चैलेंज है तो जरूरी है कि टेक्नोलॉजी ही उसका सोल्यूशन होगी। एंड साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए जिसके थ्रू आप यहाँ पर जो पीपल रिस्क है, यानी कि जो लोगों के थ्रू रिस्क होता है उसको यहाँ पर कम कर पाओ। जैसे कि न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ है तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड फर्दर आपको यहाँ पर फ्रॉड रिस्क मैनेजर्स को एम्पावर करना है एडिक्वेटली, ताकि उनके पास पावर हो कि वो रिस्क को फाइंड आउट कर पाए। एंड साथ के साथ आपको 3 चीज को एक्सटेंसिवली यूज करना है। CFR दैट इज अ सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री, क्रेडिट का लार्ज क्रेडिट के एक्सपोजर के केस में, एंड क्रेडिट ब्यूरोज का आपको सबसे ज्यादा यूज करना है। एंड फर्दर आपको मार्केट इंटेलिजेंस का यूज करना है, यानी कि मार्केट में जो पैटर्न्स चल रहे हैं उनका इस्तेमाल करना है। आपको बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स को डेवलप करना है ताकि जो भी फ्रॉड्स होते हैं आप उनको समझ पाए, जो भी पैटर्न्स आप उनको समझ पाए। एंड फर्दर आपको अपने लॉसेस को यहां पर कम करना है। लेट्स से केस कोई फ्रॉड हो गया तो हमारी मेन पहुंच क्या रहेगी उस टाइम पर कि जो भी लॉस हो चुका है उसको अब कम कर लो, एंड फर्दर जब सिचुएशन को एग्जिट कर सकते हो तब एग्जिट कर लो। एंड 11 सूत्रा जो है दैट्स रिलेटेड टू कि आप अपना जो अच्छा पैसा है, बुरे पैसे को बचाने के लिए आप अच्छे पैसे का और ज्यादा इस्तेमाल ना करो, ये ना कि वो भी खराब हो जाए, ठीक है। एंड 12 सूत्रा जो है वो ये कहता है कि जो भी आरबीआई की रेगुलेशंस होती हैं उनको अच्छे से फुलफिल करो, उनकी पालना करो। दैट्स द 12th सूत्रा ओवर देयर, ठीक है। तो ये 12 सूत्रास यहाँ पर एसएस जो यहाँ पर मुंद्रा है उन्होंने यहाँ पर दिए थे, जो कि डिप्टी आरबीआई गवर्नर रहे हैं। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू आरबीआई गाइडलाइंस ऑन इंटरनल विजिलेंस ओवर हियर इन केस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड द फॉरेन बैंक्स। तो एंटी करप्शन एजेंसीज जो हैं वो यहां पर पर्टिकुलरली होती हैं रिलेटेड टू, एंड एंटी करप्शन मेजर्स यहां पर बैंक्स को लेनी पड़ेंगी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो बैंक में जो भी काम काज हो रहा है उनको आइडेंटिफाई कर पाए कि सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। एंड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की रहेगी रिलेटेड टू कि अगर कोई भी यहां पर मिसकंडक्ट होता है, कोई भी यहां पर फ्रॉड कंडक्ट होता है जो भी उनके कंट्रोल एंड सुपरविजन एरिया में आता है, एंड उसके हिसाब से वो प्यूनिटिव एक्शंस भी लेंगे। अब यहां पर बात करते हैं सीएवी के बारे में, यानी कि चीफ ऑफ इंटरनल विजिलेंस के बारे में। जैसे कि सीवीओ की पोस्ट होती है पीएसबी के केस में, उसी तरह से सीआईवी की पोस्ट होती है आपके फॉरेन बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स के केस में। सीआईवी पर्टिकुलरली हेड होते हैं इंटरनल विजिलेंस के, एंड इंटरनल विजिलेंस जो डिवीजन है उसके हेड होते हैं। एंड सीआईवी के फंक्शन जो उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज अ प्रिवेंटिव विजिलेंस, प्यूनिटिव विजिलेंस, सर्विलेंस एंड डिटेक्शन, जो कि सिमिलर होती है सीवीओ के साथ, ठीक है। अगर प्रिवेंटिव विजिलेंस की बात करते हैं तो आपके जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, आप उनको गो थ्रू करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे एंड रिव्यू करेंगे रेगुलेटरी फंक्शंस का, गाइडलाइंस का, जो भी आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से प्रोसेसेस बनाएंगे ताकि यहां पर जो चीजें खराब हो सकती हैं वो खराब ना ही हो तो बेटर है, ओके। एंड आप मेथड इसके बेस पर डिवाइस कर देंगे। फर्दर आपको ऐसे एरियाज को यहां पर आइडेंटिफाई करना है जिसमें ज्यादा करप्शन हो सकती है, एंड आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि आपके बेस्ट जो ऑफिसर हैं, जिनकी ऑनेस्टी है, जो ऑनेस्ट है, जिनकी इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है, वो उन एरियाज में पोस्टेड हो। फर्दर इट्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट रोल एंड फंक्शंस ऑफ सीआईबी। तो यहां पर बेसिस जो रहेगा अपॉइंटमेंट सीआईबी का, वो बेसिकली उनका एक्सपीरियंस रहेगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, उनकी प्रूवन इंटीग्रिटी रहेगी, एंड साथ ही साथ वो और पर्संस को भी इंस्पायर करे कि यहां पर हमने इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है। अगर टेन्योर की बात करें तो नॉर्मल जो टेन्योर रहता है वो 3 साल का रहता है, जिसको फर्दर आगे 2 साल के लिए आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। एंड अगर सीआईबी यानी कि जो चीफ ऑफ इंटरनल जो आपके पास विजिलेंस है, वो यहां पर पर्टिकुलरली एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होते हैं विदाउट कंप्लीटिंग द अप्रूव्ड टेन्योर, यानी कि पिछला उन्होंने टेन्योर कंप्लीट नहीं किया था, उसके केस में जो ओवरऑल टेन्योर उनका हो सकता है सीआईबी वो 6 साल का हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता है। फर्दर रिलेटेड टू
आप सीआईबी के पास ऐसे कोई और कामकाज नहीं देंगे जो इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे विजिलेंस के प्रोसेस में एंड और काम के काज के प्रोसेस में। फर्दर इट्स रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स ओवर देयर एंड उसका रिव्यू सीआईबी के द्वारा किया जाएगा। जो भी यहां पर पेंडिंग मैटर्स हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, डिसिप्लिनरी केसेस हैं, विजिलेंस की कंप्लेंट्स हैं, वो पर्टिकुलरली उनका रिव्यू किया जाएगा एंड उसके रिलेटेड यहां पर हर एक महीने के पहले हफ्ते में यहां पर पर्टिकुलरली रिपोर्टिंग की जाएगी कि वो सब चीजों को उन्होंने रिव्यू कर लिया है, राइट। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू स्टाफ रोटेशन एंड द मैंडेटरी लीव ओवर देयर। तो बैंक्स को जो भी यहां पर प्रॉन एरियाज है, जो भी सेंसिटिव जॉब्स हैं, उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बोर्ड को यहां पर इंटरनल पॉलिसी बनानी चाहिए एंड साथ के साथ ये चीज देखनी चाहिए कम से कम उनको 2 हफ्ते की यहां पर मैंडेटरी लीव साल में जरूर दी जाए एंड जो भी यहां पर जॉब्स हैं, सेंसिटिव जॉब्स हैं, उनमें जॉब रोटेशन जरूर हो। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू कंप्लेंट। जब भी आपके पास कोई कंप्लेंट आती है रिलेटेड टू करप्शन, मेल प्रैक्टिस, मिसकंडक्ट या फिर इंप्लॉयज के पार्ट के ऊपर जो भी सोर्स होता है, आप उसको कंप्लेंट कहते हैं। एंड कंप्लेंट जो है आपके पास से इंप्लॉयज की तरफ से भी आ सकती है, पब्लिक की तरफ से भी आ सकती है, आपके पास डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन रिपोर्ट से भी कंप्लेंट आ सकती है, या फिर आपने स्टॉक वेरिफिकेशन करी थी उसके थ्रू भी आ सकती है, या फिर अपने एनुअल जो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट से उनको सर्वे किया, या फिर अपने ट्रांजेक्शन जो रिपोर्टेड थी उनको स्क्रूटिनी करी, या फिर अपने इरेगुलरिटीज जो थी अकाउंट्स में वो डिटेक्ट करी। तो कहीं से भी आपको कोई चीज पता लगती है, या फिर ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू पता लगती है, या सोशल मीडिया के थ्रू पता लगती है, दोस ऑल आर काउंटेड एज फॉर कंप्लेंट ओवर देयर। Then it's related to investigation agency for conducting investigations. Investigation agency for conducting investigations over there. तो ये चीज यहां पर नेसेसरी रहेगी कि जो भी आपके पास यहां पर एलिगेशंस लगाई गई हैं उनको डिपार्टमेंटली हैंडल किया जाए या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन उनमें जरूरी है, उस चीज को यहां पर आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द फ्रॉड एंड विजिलेंस इन द बैंक्स ओवर देयर। आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर देना। आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड फर्दर आप हमारा कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, ऐसी ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाए। तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर iOS यूजर, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फर्दर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए। व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 9646900330 के ऊपर, and we will be sharing all the links to you and free PDFs to you. So thank you so much and see you again in the next video.